Welcome. In C part of lecture 7, in B part, we gave the complete description to find the solution of freedom integral equation of second kind that have separable kernel. In today's lecture, we will practice 3 questions. Now we will solve solution of freedom integral equation of second kind by algebraic method. freedom integral equation ओनली सेकेंड काइंड से काम नहीं चलेगा. आपका कर्नल कैसा होना चाहिए? द कर्नल शुड बी सेपरेबल. ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड एज वी स्टडीड इन योर प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है. तो इन टुडे लेक्चर वी प्रैक्टिस 3 क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर इज solve the freedom integral equation with separable kernel. The equation is gs is equal to s plus lambda 0 to 1 minus 3st g of t dt. देखिए, अगर आपने 7th लेक्चर का पार्ट बी वॉच किया है, देयर आई टोल्ड कि द कर्नल शुड बी सेपरेबल एंड इफ कर्नल इज सेपरेबल तो यू कैन राइट यूर के एस टी. इन दिस केस दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका a1s b1t plus a2s b2t. So here a1s first term, that is 1 minus 3 of s and this is t. So here a1s is 1, b1t is also 1, a2s is your minus 3s and b2t is equal to t. ठीक है. एक तो प्रोसीजर है कि आप इसे मेंशन करो फिर पुट कर दो, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. मतलब चीज़ वही है, ये आप वही स्टेप्स करेंगे. उसके बाद आपने क्या कहा था? यू सेड सी आई दैट इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी आई ऑफ टी एंड जी ऑफ टी डी टी. दीज आर माई सी आईज एंड आफ्टर देन you got the equation gs is equal to f of s plus lambda summation of ci's and ais. ठीक है. तो that is my required equation या solution. तो वो हम इसमें ऐसे भी लिखेंगे. तो let us take this value is c1 and this value is my c2. तो आप यहाँ कहेंगे c1 is equal to 0 to 1 g1 gt और dt. तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे आपका b1 आपका 1 है. ठीक है. तो ये मेरा c1 हो गया. तो लेट अस टेक द नंबरिंग ऑफ दिस वन. सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड लेट c1 इज दिस एंड आई एम टेकिंग c2 इज इक्वल टू 0 to 1. वैसे रूल से होता है b2t, वो कि मेरा t है. ठीक है. ये एक्सप्रेशन जो है इसको मैंने कहा दिस इज माई c2. इफ़ आई यूज़ दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर, suppose this is my second equation, if I put these values, तो second implies me gs is equal to, ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? this is equal to s plus lambda and this is c1, this is minus of 3s and it is c2. ठीक है. let us take this is second a and this is my second of b and this equation is 3. Now I want to find the system AC is equal to F as I told in the lecture 7 part B. So here is GT. So replace S by T in equation number 3. So I obtained here G of T is equal to, this is T plus lambda C1 minus 3t and c2 and suppose this is 3 star equation. तो it is my required equation. आप ये 3 भी कर सकते हैं, टेम्परेरी मैंने कंस्ट्रक्ट की. तो यूज़ दिस इन सेकेंड ए. व्हाट इज सेकेंड ए इक्वेशन? सेकेंड ए इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0 to 1 g of t. व्हाट इज gt? 3 स्टार इक्वेशन यूज़ करें तो you will obtain this expression 3c2 and t and there is integration. Now integrate with this with respect to t and then put the limit. So simplification
I obtain 1 minus lambda C1 plus 3 by 2 C2 is equal to half. So write this equation fourth of A. Similarly, second B equation. Second B में आपके पास क्या है? Second B. Use the value of GT here. So it gives me C2 is equal to, this is 0 to 1 and G of T. GT is 3 star equation. Multiply this expression by T and integrate. Yani I obtain here this T square lambda C1, it is T, and this is minus 3C2 and T square and D of T. Now integrate this expression with respect to T and use the limit 0 to 1. Before doing further calculation, I make a mistake here. देखिए, it lambda is outside this one. When I wrote this expression as C1, I wrote only lambda with C1. तो यहाँ पर भी lambda आएगा. देखो ना, lambda इससे multiply है. So there is also need of lambda here. So there is lambda here. So when you integrate this one, lambda is here. When you take the integration of this lambda is here. तो यानी कि यहाँ पर भी आपका lambda है. ठीक है. तो when you take this on the left hand side, there is lambda. ठीक है. तो ये मिस्टेक आपने की. अब C2 में वैल्यू पुट की है तो लैम्डा तो यहाँ पर होगा and lambda is here. Now I integrated this and putting the limit 0 to 1. So this gives 1 by 3. This is lambda C1 and 1 limit to ये आपका lambda by 2 हो जाएगा and this is C2 and lambda here. ठीक है. Now take this on the left hand side. So take C2 is here. When I take this C2 on the right hand side and this 1 by 3 on the left hand side, I obtain the equation number 4 of B. Now write this in the system of your equations. मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन कीजिए इस एक्सप्रेशन को. 4A and 4B we obtained. I obtained this system of equation in two variables C1 and C2 and this is algebraic सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सो लास्ट टाइम जब मैंने आपको करवाया था 8 इक्वेशन लिखी थी. हमने लिखा था AC इज इक्वल टू F, है ना. एंड एज द राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड दिस सिस्टम हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन. व्हाट आर द कंडीशन? यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी? डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जिसको मैंने कंसीडर किया था D ऑफ लैम्डा एंड दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. अब तो क्योंकि आपके पास एफ ऑफ एस की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इज एस. इन माय क्वेश्चन एफ ऑफ एस इज व्हाट? इन दिस क्वेश्चन एस इज गिवन. जो आगे आपकी फर्दर थ्योरम्स आनी है, देयर दिस कंडीशन एफ ऑफ एस इज नॉट मेंशन. मे बी 0, मे बी नॉट इक्वल टू 0. तो नॉट इक्वल टू 0 का केस होगा तो उसमें राइट हैंड साइड डिपेंड करेगी एंड दैट विल गिव द जनरेशन ऑफ आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वैसे होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन विद सेपरेबल कर्नल, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं. ठीक है. इन टुडे लेक्चर सिर्फ हम कर रहे हैं कि एफ ऑफ एस इज गिवन टू यू एंड यू ऑब्टेन द सिस्टम ऑफ इन दिस फॉर्म AC इक्वल टू F. नाउ दिस सिस्टम हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन माई क्वेश्चन. तो कंडीशन क्या है? D लैम्डा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट. तो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में AC इक्वल टू F की फॉर्म में लिखें तो ये आंसर क्या है? दिस इज 1 माइनस लैम्डा 3 बाई 2 लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाई 2 माइनस 1 प्लस ऑफ लैम्डा. आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. जैसे आपने BSc फर्स्ट ईयर में था शायद आपके पास ये ना सिस्टम को सॉल्व करने का रैंक मेथड से. ओके. हियर व्हाट इज द D लैम्डा? D लैम्डा इज द कोफिशिएंट, यानी कि जो हमारा यहाँ A है उसका डिटर्मिनेंट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हियर? दिस इज 1 माइनस लैम्डा 3 बाई 2 लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड माइनस 1 प्लस ऑफ लैम्डा एंड दिस डिटर्मिनेंट. तो लैम्डा की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? सो मैनी वैल्यूज़. ठीक है.
तो ये यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0. नाउ हेयर यू विल ऑब्टेन एट मोस्ट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ठीक है, 0 वाला केस जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, वो डिपेंड करता है f(s) क्या है आपका, तो वो हम काउंट नहीं करते होते. चलिए फिलहाल इसमें देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करो. ठीक है, दिस इंटू दिस क्या आंसर देगा, -1a + b 1 - लैम्डा स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 एंड दिस कंडीशन इज नॉट इक्वल टू 0. तो फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो यहाँ 2 वैल्यू पे डिस्कार्ड हो जाएगा, बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा. सिर्फ 2 वैल्यूज़ होंगी जिस पर डिटरमिनेंट क्या देगा, आंसर 0 देगा, और बाकी सब वैल्यूज़ पे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, तो दिस सिस्टम, दिस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज माई राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो हेयर. फिर हमें वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो वो कहाँ से मिलेगा. देखिए ये आपका सिस्टम बन गया आपका 5th. नाउ यू कैन सॉल्व दिस, देर आर डिफरेंट वेज. तो हम तो क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे एज वी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर 7th पार्ट बी. तो यहाँ कंडीशन निकाल लो, देन कैलकुलेट. आई विल टेक दिस सिंबल इज डेल्टा फॉर द क्रैमर. ठीक है, तो डेल्टा वैल्यूज़ आपकी आ चुकी है, इसको सिंप्लीफिकेशन करो and फिर then delta 1 is also determinant. And this, how you obtain this one, you will replace the your first column by the right hand side. So 1/2 1/3 minus this is 3/2 lambda minus 1 plus of lambda. I also need the value of delta 2. How to obtain delta 2? This help in finding C1, this help in finding C2. ठीक है, एंड हाउ टू फाइंड डेल्टा 2 इन डेल्टा, इट्स माई डेल्टा. ठीक है ना, डेल्टा इज नथिंग बट डी लैम्डा. यू विल रिप्लेस योर सेकेंड कॉलम बाय द राइट हैंड साइड, तो यू विल ऑब्टेन 1/λ, लैम्डा बाई 2, इट्स 1/2 एंड माइनस 1/3. नाउ expand this determinant and simplify this one. तो here on simplification this one d lambda यानी delta I obtain his lambda square minus 4/4. ठीक है, this is my delta and delta 1 this into this minus sign this into this, तो प्लस बन जाएगा, तो I obtain half माइनस का. And similarly on expanding this determinant I obtained this expression and its value is lambda minus 4/12. So here C1 is given by delta 1 by delta and its value is equal to delta 1 is lambda minus half by lambda delta lambda square minus 4/4. तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो you obtain -2 by lambda square minus 4. This is my C1 value. And similarly you will obtain the value of C2 and C2 is equal to it's delta 2 by delta. Here our delta is not equal to 0, तभी आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन का केस है ये आपका. C2 is equal to delta 2 by delta. delta 2 क्या है आपका, lambda minus 4/12 into minus delta is lambda square minus 4/4. तो you will obtain here 3 और lambda square minus 4. ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा. 9 number 4 lambda square minus 4. This is my C2. Now put C1 and C2 in equation, required solution equation, यानी कि equation number you will put C1 and C2 in equation 3. तो जो आपकी 3 इक्वेशन है ना वहाँ पुट कर दो इसे, तो आई ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हेयर आई पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड हेयर आई पुट द वैल्यू ऑफ C2. तो 3 to 3 कैंसिल, तो इट्स रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन फॉर माई गिवन
फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशंस एंड दिस इज वैलिड फॉर लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 2। इफ़ आई सेड इफ लैम्डा इक्वल टू 2, क्या सॉल्यूशन होगा? थिंक अबाउट दिस। इसका आंसर आपको कमिंग लेक्चर्स में मिल जाएगा जब हम अल्टरनेटिव थ्योरम फ्रीडोम कर लेंगे, ठीक है। इफ़ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 2, सपोज इस क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाती हूँ इसको, एंड इफ आई सेड कि लैम्डा इक्वल टू 3, दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, माय आंसर इज राइट, ठीक है। इफ आई सेड लैम्डा इज इक्वल टू 5, दिस सिस्टम ऑफ दिस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो आंसर इज राइट। जस्ट आपने लैम्डा की जगह क्या पुट कर देना, 5, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंडीशन क्या मिली आपको, फॉर लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो नाउ माय क्वेश्चन इज इफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 और लैम्डा इज इक्वल टू -2, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। यह आंसर अभी आपने सोचना है, क्वेश्चन सोचना है, एंड कमिंग लेक्चर में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। The next question is this one, and this is important question because this is from your book. जो कन्वल वाली बुक है उसमें ये एग्जाम्पल्स में है, एंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे ये डी लैम्डा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इन माय क्वेश्चन वी कैन सॉल्व दिस इन 2 वेज। फर्स्ट, जैसे आप कर्नल करते हैं ना, जैसे हमने वर्किंग प्रोसीजर किया था, तो के एस टी इज़ माई सेपरेबल एंड दिस इज़ A1S B1T प्लस A2S। एक क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्मेट से भी, ये क्वेश्चन हम सीधा करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो दिस वैल्यू इज़ माई S, इट इज़ माई B1T, इट्स माई S स्क्वायर एंड दिस T इज़ माई B2T। देन आई टोल्ड इन द डेरिवेशन की CI क्या था, लिमिट A टू B BIT G ऑफ T एंड DT, दीज आर माई C1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या देगी, अगर आप ये पुट करते हैं यहाँ, तो GS इज इक्वल टू S प्लस लैम्डा, आई एम टेकिंग दिस S आउटसाइड, तो रिमेनिंग क्या मिला मुझे, 0 to 1 T स्क्वायर, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर 0 to 1, दिस इज T स्क्वायर G ऑफ T एंड दिस इज D ऑफ T प्लस S स्क्वायर, एंड हियर आई एम राइटिंग 0 to 1 एंड दिस इज T G ऑफ T एंड D ऑफ T। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज माई C1 एंड दिस एक्सप्रेशन इज माई C2। तो वेयर you can use C1 is nothing but 0 to 1 T square G of T and this is D of T, and you are taking C2 is equal to 0 to 1, this is T G of T dt, ठीक है। या तो एक तरीका है कि हाँ हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लेंथ ही जाएगा, तो वी विल यूज दिस सब्स्टिट्यूशन हियर एंड देन यूज दिस वैल्यू ऑफ GT हियर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो लीजिए, लेट अस टेक दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, लेट अस टेक दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड इट इज़ माय सेकंड A पार्ट, इट्स माय सेकंड B पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लिया तो आपके लास्ट नंबरिंग नहीं है, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो टू इम्प्लाइज मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन आई ऑब्टेन्ड GS इज इक्वल टू, दिस इज S प्लस, है देखिए आपको फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एस नहीं है। अगर एफ एस होता तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट डिपेंड अपॉन द राइट हैंड साइड ऑफ AC इज इक्वल टू F, जो इक्वेशन 8 बनती है आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, ठीक है। हेयर दिस इज गिवन, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी ऑब्टेन आवर राइट हैंड साइड F and there we can decide, okay, put these values here, so it's here lambda, it is S, and in place of this term you will put here C1 and S square. Again I am making same mistake as make in previous, देखिए ये लैम्डा आपके दोनों टर्म के साथ है, तो यू विल राइट हियर आल्सो लैम्डा, ठीक है। तो एस स्क्वायर, ये जनरल मिस्टेक होगी आपसे भी, तो ट्राई टू नॉट रिपीट इट अगेन, okay, S square lambda and this value is my C2, so this is my required solution.
मुझे यहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू निकालनी है इफ़ आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ द प्रोसीजर इज सेम एज वी अडोप्टेड इन प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स. हेयर आई नीड GT, हेयर आई नीड GT. तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम रिप्लेसिंग S बाई T. तो आई ऑब्टेन द एक्सप्रेशन लाइक दिस फॉर्म. दिस इज माई थर्ड स्टार इक्वेशन. सेकेंड ए में पुट कर दीजिए. योर आंसर इज C1 इज इक्वल टू 0 to 1. हेयर T square. तो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द GT बाई T square. So this is T cube plus lambda. It again gives you T cube. I am not combining because this is with C1, this is without C1. तो ये आपकी constant term बननी, तो बेटर है आप इसको सेपरेट ही रखें. ठीक है. This is you are multiplying this by T square, तो you obtain T4 lambda of C2 and integrate. Now integrate this expression with respect to T and put the limit 0 to 1. So on integration I obtain this expression. So first you will integrate this, then put limit 1 1 1 here. 0 put करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, तो you obtain this one. Now C1 is here, C1 is here. Take this term on the left hand side. I obtain 1 minus lambda by 4 C1, and taking this on the left hand side, lambda by 5 C2 is equal to 1 by 4. So it's my 4a equation. I obtain this by second A. Now put the value of GT in second B. So C2 is equal to 0 to 1 T, and this is my value of GT. Take T square lambda T square C1 T cube lambda C2 dt. Now integrate this. T cube by 3 T cube by 3 lambda C1 T4 by 4 lambda C2. Now put T is equal to 1 upper limit minus 0. So it gives you 1 by 3 on the right hand side, lambda by 3 C1, lambda by 4 C2. Now I am taking this on the left hand side, so it gives minus lambda by 3 C1. This on the left hand side, already C2 common, 1 minus lambda by 4 C2 is equal to 1 by 3. So for A and for B, I want to find this system of equation. AC is equal to, my right hand side is F here. तो 4a equation, the left hand side क्या बनेगी, 1 minus lambda by 4 minus lambda by 5 operating on your column matrix C1 and C2. And what is your right hand side in 4a? Right hand side is my 1 by 4. ठीक है. And here C1 का कोफिशिएंट कितना है, minus lambda by 3, and this is 1 minus lambda by 4. This with this equal to 1 by 3. We can write my 4a and 4b in the system of equation like this. Now this is a simple question which you have already solved in your plus 2 classes and BSc also. This system of equation at the right hand side is non-zero, तो non homogeneous case है. ax is equal to b फॉर्म में आपने किया था, and here b is not equal to 0. अगर यहाँ 0 हो ना, in that case infinite solution chances बनते हैं. ठीक है. तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ, राइट हैंड साइड आपकी है नहीं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 0 दे देगी आपको, कुछ ना कुछ रिपीटेड इक्वेशन बनेगी. अब डिपेंड करेगा कि दोनों इक्वेशन 0 बनती है, रैंक कितना आता है. ठीक है. तो अभी हम वो केस नहीं कर रहे हैं कि इफ़ योर लैम्डा इज इक्वल टू यानी डी लैम्डा इक्वल टू 0. ठीक है. वो आपको देगा, अल्टरनेट थ्योरम करने के बाद करेंगे वो क्वेश्चन, करेंगे हम वो क्वेश्चन भी हमने करने हैं. चलिए फिलहाल हम इसका आंसर देते हैं कि हमारी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसकी मैट्रिक्स का यानी ये जो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0. एंड इन 7th लेक्चर पार्ट बी वी डिनोटेड दिस डिटरमिनेंट बाय डी लैम्डा. डी लैम्डा इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है. आपकी बुक की नोटेशन भी यही है, तो आई एम पिकिंग द सेम. टेक द डिटरमिनेंट. ठीक है. तो 1 माइनस ऑफ लैम्डा बाय 4, दिस इज माइनस लैम्डा बाय 5 माइनस लैम्डा बाय 3 एंड 1 माइनस लैम्डा बाय 4. एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट एंड टेक दिस इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये आपको एक कंडीशन देगा. सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखो क्या बनता है आपका. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन आई ऑब्टेन दिस वन.
ठीक है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन determinant of coefficient matrix should be not equal to 0, तो दिस इज द कंडीशन। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो आप इसमें डी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो ये आपको दे देगा 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा, ये तो 0 यहाँ गुना हो जाएगी। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक द माइनस कॉमन, तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा माइनस 240 नॉट इक्वल टू 0 हेयर। ठीक है, तो आप ये कंडीशंस पे पहुँच कीजिए। तो ये आपका वो करते थे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यू विल ऑब्टेन हियर माई लैम्डा इज इक्वल टू 1 and 2 बोथ वैल्यूज़ आप निकाल रहे हैं, माइनस ऑफ 120 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 120 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज़ योर 1 and c is your minus 120, तो दिस इज 120 बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए करेंगे तो आपका 2 ही रहेगा। नाउ टेक द 2 आउटसाइड, सिंप्लीफाई करो, देखो इसका आंसर आपका क्या आता है। 2 से कॉमन माइनस 60 होगा प्लस माइनस अंडर रूट, आई एम टेकिंग 4 आउटसाइड 4 हियर, तो इट इज़ 2 का स्क्वायर किया तो आपका 60 बन जाएगा ना, तो 60 का स्क्वायर प्लस 120, आपका यहाँ से कितना आप कॉमन ले रहे हैं, 4 इज यू आर टेकिंग आउटसाइड, तो दिस इज 1 ओनली दिस टर्म हियर। अच्छा देखो यहाँ पे हमने 4ac किया ना, तो ये 240 है यहाँ ऑलरेडी है ना। ठीक है, तो ये 240 आई एम टेकिंग 4 आउटसाइड फ्रॉम दिस वन, 4 अंडर रूट करोगे तो 2 का यहाँ 60, तो आई ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। नाउ 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 240 करो इसको सिंप्लीफाई, गिव मी द आंसर ऑफ लैम्डा। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म आई ऑब्टेन दिस वन, तो दीज आर द टू वैल्यूज वेयर दिस सिस्टम फिफ्थ हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 आई विल अगेन यूज द क्रैमर रूल। देखिए डी लैम्डा आपका क्या था, दिस इज 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 240 है ना। दिस इट वाज माय डेल्टा, अगर मुझे डेल्टा चाहिए तो, और वो कंडीशन हमने निकाली कि दिस अबो टर्म दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ हम ये भी कहते हैं कि 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक तरह से ये है कि माइनस कॉमन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 120 लैम्डा माइनस 240 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमने रूट निकाले हैं वो तो हमने इस इक्वेशन के निकाले ना, देखो माइनस कॉमन कर लिया था यहाँ पर, तो ये जो रूट निकले हैं वो वैल्यूज़ आई हैं मेरी फॉर दिस एक्सप्रेशन, और डी लैम्डा में मेरे पास है या माइनस के साइन के साथ, तो दिस वैल्यू इज़ हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं ऐसे, या आप इसे ऐसे भी रख लें कि ये आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मुझे C1 चाहिए, C1 इज़ नथिंग बट डेल्टा 1 बाई डेल्टा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ऑब्टेन द डेल्टा 1, तो लेट अस टेक दिस इज 6th इक्वेशन A part, and if I said C2 is delta 2 by delta, here my objective is to find the value of C1 and C2। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे आप, तो आपके पास एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो इसमें आपका फर्स्ट कॉलम यू विल रिप्लेस बाय द राइट हैंड साइड। सो डेल्टा 1 इज गिवन बाय फर्स्ट कॉलम, जो आपका डेल्टा है वो रिप्लेस करेंगे आप, यानी दिस वाज माय डेल्टा, ठीक है, ये रिप्लेस कर दो 1413 से, राइट एंड सेकेंड कॉलम रिमेन्स द सेम। अब इसे एक्सपेंड करो, दिस मल्टीप्लाई एंड दिस माइनस साइन के साथ, टेक द एलसीएम, सो इट गिव्स मी 60 माइनस लैम्डा बाय इट गिव्स 240। ठीक है, तो राइट इज दिस इज माई 6th है, या इसको 7 ही कर दीजिए आप। ठीक है, सिमिलरली सॉरी दिस इज नॉट, नो नीड टू राइट दिस एक्सप्रेशन। देखिए आपको C1 फाइंड आउट करना है, तो C1 क्या था, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, व्हाट इज माय डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज 60 माइनस लैम्डा बाय 240 है ना।
एंड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा इज दिस एक्सप्रेशन, तो दिस इज 240 minus 120 lambda minus lambda square, and this is 240 cancel out, you obtained here 60 minus lambda by 240 minus 120 lambda minus of lambda square. You can write this is 7th equation. ठीक है, now find the value of delta 2. delta 2 में आपने क्या करना है, you will replace your second column by your right hand side. So it first column is your lambda by 4 and this is minus lambda by 3, second column is 1 by 4, this is 1 by 3. करो इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड, दिस इज, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो ऑन एक्सपेंडिंग आई ऑब्टेन 1 by 3. ठीक है, देन यू विल राइट C2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2? C2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, तो डेल्टा 2 आप निकाल रहे हो 1 by 3 एंड डेल्टा इज योर एक्सप्रेशन दिस वन, तो दिस इट गिव्स यू 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 240 को आप कैंसिल करोगे तो 80 बाई समथिंग बनेगा दिस वन. ठीक है, एंड कंडीशन इज दिस इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 3rd. So on putting these values, I obtained this unique solution for the given Freedom integral equation. ठीक है, तो this is my unique solution. Now I am giving you one more question and this is assignment to all of you from my side. The question is solve this Freedom integral equation with the separable करना this one, limit is 0 to pi. एंड व्हेन यू सॉल्व दिस अगेन आप ऐसे इसे लिखेंगे, दिस इज वाई ऑफ एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एस प्लस लैम्डा, इसको आप एक्सपेंड करेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा. आई एम राइटिंग अगेन हियर, देखो ये बनेगा साइन ऑफ एस कॉस ऑफ टी प्लस कॉस ऑफ एस साइन ऑफ टी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, तो यानी आपका क्वेश्चन बनेगा वाई एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एस प्लस लैम्डा, साइन एस तो आउटसाइड ले लोगे. ठीक है, और उधर क्या ले लोगे, लैम्डा कॉमन करके कॉस एस आउटसाइड, तो रिमेनिंग क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 0 to 1 कॉस ऑफ टी एंड हियर इज वाई टी आल्सो, ये जो वाई टी है ये आपका राइट हैंड साइड में. ठीक है, तो ये कॉस टी वाई टी इसको आप कहेंगे यहाँ पर C1 एंड साइन टी वाई टी डी टी को कहोगे आप C2, तो ये आपकी 3rd इक्वेशन बनेगी. ठीक है, फिर वही वाई टी हिसाब से करोगे, यू विल ऑब्टेन द 2 इक्वेशंस ए सी एक्स एफ के बराबर डी लैम्डा आपका आ जाएगा, और ये इस डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यू विल ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म डी लैम्डा को सॉल्व करके बनेगा आपका 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4. एंड द यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगी डी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेम लाइन क्वेश्चन है. ठीक है, तो दिस इज असाइनमेंट, आई होप आप इसे कर लेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.